So today's class we are going to study electric field. So what we are going to do is that in first one or two lectures, what we are going to do is we are going to study electric field in a traditional, conventional way. Yes, sir. From Coulomb's law and superposition principle. Yes. And we'll do set of problems how to find an electric field at a given point. And then we can do our understanding of vector calculus using divergence and gradient, how we can reformulate or how we can define electric field at a given point. And we can find the same problem finding an electric field via this method and via that method and trying to find an equivalence. So why we are using two methods is that, or more than two methods, जो मैंने last time कहा था, because sometimes a given problem it becomes easier to, but how will you find that it is easier, or you can see it yourself. Yes. For example, a given problem finding an electric field due to a line charge at a given point, or else, so it will take more steps. So you have to solve integral. It becomes a bit sometimes complicated. If it's a symmetrical surface, so using Gauss's law or using the other language, you can find the answer in few steps. Okay? Or there are some problems you cannot do it through by Gauss's law. So this will come only and only if you can do as many problems of finding an electric field as many possible. अब यहाँ मैं थोड़ा सा caveat is there. Caveat समझते हैं? Caveat means a sort of thing जो किताबों में अक्सर आप पढ़ते हैं. That is electric field due to point, line and surface or volume charge. हम normally spherically charged surfaces लेते हैं या symmetrical surfaces लेते हैं. Why we do? Because they are the simplest. In physics we normally start with again and again repeating simplest things. But nature में जो for example एक wire है यहाँ से, है ना? इसमें जो charge flow होता है that may not be perfectly cylindrical. It may be इसकी topology इधर-उधर की होगी. Yes, sir. ठीक है, line may not be a perfect line. इसमें थोड़ा सा इधर-उधर होगा. So जो charge की motion उसमें होगी, it will not be exactly rectilinear, है ना? These are all sorts of approximations. तो अगर आपके पास real charge होगा, अब अगर वही मैंने कल कहा था, तो you should be very much adept in solving how to find line charge, line integral, surface integral, volume integral. Not only for symmetrical surfaces, for non-symmetrical surfaces. क्योंकि ultimately charge इन्हीं में है, whether it's line, space, volume, ठीक है, अब can be symmetrical or non-symmetrical. So you should be able to evaluate the line integrals or surface integrals or volume integrals of all kinds. The knowledge of calculus comes very much handy. So what I'm going to start today's lecture is electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हाउ डिफाइन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, वी वांट टू फाइंड, यू नो इट बाय एंड लार्ज, यू हैव स्टडीड इट, वी हैव टू फाइंड देयर इज अ सोर्स चार्ज एंड देयर इज अ टेस्ट चार्ज, एंड सोर्स चार्ज की वजह से a field gets created. This is a source charge and this is a Charge. so source, what is the electric field due to source charge on the, and the source charge may be one or it may be a bunch of charges. Yes, sir. अब इसमें ये है कि we have a very important principle that's known as superposition. Superposition principle क्या है? Basically, in the simplest cases, हम कहते हैं अगर there are bunch of source charges, we are going to find an electric field at a given point this. Why we are trying to find the force of this charge individually on this charge? उस वक्त ये वाले बाकी charge they will not have any effect. Such that the net force of these bunch of charges on at this charge where इनका summation होगा. Why we are calculating the force of this test charge on this? ठीक है? अगर these are 2, 3, 4, चलो force of discharge on this, these three will not attract it. We can say as if they are negligible. Is there, while it is acting on this,
वी आर नॉट assuming this is acting. Such that जो हमारे पास आएगा it will be 1 2 plus F22 plus is the F32 Yes, sir. Yes, sir. plus F4. So जो resolution of forces आएगा, ठीक है, उसका addition है ना, Yes, sir. that will give us an electric field at a given point. Again, another assumption which you might have studied in your earlier classes is that when we take test charge, from test charge को ऐसे लिखते हैं, we take F is equal to F by Q normally. Yes, sir. So Q tends to 0. Why we take it tends to 0 means while we are calculating, this is an approximation, while we are calculating the force of electric field on this test charge, it is not indirectly going to affect the, इस पर उतना असर कम होगा, तभी हम कैलकुलेट करेंगे. इट्स एन अप्रोक्सीमेशन अल्टीमेटली बिकॉज टेस्ट चार्ज इज ऑल्सो एन आइडियलाइजेशन. ठीक है, कुछ ना, बट अगर हम काम भी रखेंगे कुछ ना कुछ होगा टेस्ट चार्ज का भी. सो दैट्स व्हाई इट्स ए कंटिन्यूअस. क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू टेंड्स टू 0. ठीक है, तो जो स्टेटमेंट अब आ रही हमारे पास है, टू फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू source charge or a bunch of charge, whether they are at rest or whether they are at moving, we need two principles. एक, we need Coulomb's law, which you know it, and superposition principle. तो Coulomb's law में यही है, जो फोर्स है कि नॉर्मली QF is equal to हमें QE. तो you can invoke indirectly the definition of electric field. ठीक है, so add resolution of forces which are required to find the electric field at a given point क्या है हमारे पास. अब इसमें एक और पॉइंट है which you can see in the books that if it will not have been Q1 Q2, the superposition principle will only work if it's a linear function of f is q1 q2 by r square. अगर ये ऐसे होता है q1 square q2 square, then superposition principle will not work because इस पर आप q1 q2 square will not be equal to q1 square plus q2 square. So this argument he has given in the footnote of the book. इस पर आप थोड़ा सा गौर करो. You try to see what he wants to say. If it not have been Q1 Q2, it should have been Q1 square Q2 square, superposition principle will not hold. Yes, sir. Yes sir नहीं, yes sir मतलब आप इस पर नॉर्डिक ऐसे नहीं, ये आपको नहीं समझ आया पूरी तरीके से, इसको आप सोचो घर पर, है ना. ये इज राइटिंग इट इन फुटनोट. ठीक है, मतलब यू शुड नॉट से एवरीथिंग. थोड़ा सोचना है ना खुद भी, हम मैं जो भी कह रहा हूँ थोड़ा इसको इवेल्युएट करना है, चेक करना है, क्रॉस चेक करना है. When you verify it on your own, Sir. तब होगा यस सर, फिर ठीक है यस सर, अदरवाइज यस सर इज नो सर, है ना. तो इसमें आई एम नॉट कन्विंस्ड बाय दिस. यू शुड नॉट बी कन्विंस्ड. खौफ नहीं, मुझे नहीं, क्योंकि वी हैव टू स्टडी थिंग्स. मेरा है कि माय रोल इज टू आपको पहुंचाना है कहाँ तक. आई विल जस्ट हेल्प यू टू लर्न दिस थिंग, बट यू शुड नो हाउ टू कन्विंस योरसेल्फ लॉजिकली और द वे सब्जेक्ट डिमांड्स. अब इसमें ये है कि हाँ, ये तो आपको पता ही है, ये इंफॉर्मेशन एफ इज इक्वल टू 1 by q 4 by epsilon naught q by r square, है ना. दिस इज यूनिट वेक्टर. एंड जो सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस लेते हैं दैट्स r prime और है ना, ऐसे लिखते हैं नॉर्मली टू टेक इट लाइक दिस. अब इट्स नॉट नेसेसरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट मे बी ड्यू टू वन चार्ज. जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में बी ड्यू टू वन चार्ज और इट मे बी ड्यू टू बंच ऑफ चार्ज. अगर हम सिंबॉलिकली इफ यू वांट टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ जैसे फोर्स होता है ड्यू टू वन चार्ज, अनदर चार्ज, है ना, एंड सो मनी. तो फोर्स ड्यू टू वन चार्ज अगर इसको बाहर निकालेंगे इट विल बी q1 q by r1 square or unit vector. It's q2 by r2 unit vector and plus 1. And so if it's not force of these many charge on this, it will be r1, दूसरा होगा r2, है ना.
सो द फोर्स हाउ मच विल बी फोर्स। तो और कैन अगर हम इसको अगर चार्ज एक वहां पर जो कॉमन चार्ज है जिसपे फोर्स होता है, नेट फोर्स विल बी Q1 by R1 square plus Q2 by R2 square, so on and so forth. और F जो हमारे पास है, F is equal to QE या E is equal to force per unit charge, है ना, पता है। तो इस सब को if you want to write it in terms of this thing, we can write it in terms of 1 by 4 pi epsilon naught। ये है ना, क्यू को बदले रखो एम बाई ई, ई आ गया एक साइड में। सो यू कैन राइट जो हमारे पास ये होगा ना R1 R2 और सो यू कैन हैव इट एज रो आर और यूनिट वेक्टर, ठीक है, दैट्स इट। अब there's a section in this book, अगर आप इसमें बुक में पढ़ोगे, you should read this section. What is an electric field? So he has given a computational way of understanding electric field. So electric field में what he says is थोड़ा इसमें इसने historical note दिया है, क्योंकि जो मैक्सवेल के टाइम्स में when the electric fields were there, ठीक है, electric field की हिस्ट्री है। जिस तरह फोर्स है ना, फोर्स was not always हिस्टोरिकली, फोर्स वॉज कि कोई ना कोई चीज़ होना चाहिए धक्का दे सकता है। जो कोई चीज़ इनविजिबली अट्रैक्ट करेगा तो कैसे करेगा, विदाउट स्ट्रिंग्स। सो इट वॉज ए इंसानी जहन की इमेजिनेशन थी, वी थॉट ऑफ समथिंग कॉल्ड इनविजिबल लाइंस ऑफ फोर्स, फैराडे टॉल्ड दिस, या न्यूटन ने इन्वेंट किया था। एक था एक्शन एट ए डिस्टेंस, एक्शन एट ए डिस्टेंस उसको कहते हैं। जैसे प्रॉब्लम है मैकेनिक्स में, मून और उस वक्त 16th सेंचुरी मून कैसे अर्थ को अट्रैक्ट करेगी या सन को, ठीक है, इनविजिबल लाइंस। तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन था कि जब मून फुल होता है तो उस वक्त टाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सो इट विल कम क्लोजर फुल मून में। द सन, अर्थ एंड मून की डिस्टेंस क्लोजर है, व्हेन इट्स क्लोजर द अट्रैक्शन विल बी मोर। उसकी वजह से जो सी के टाइड्स हैं, पानी वो ज़्यादा खींचता है, सो टाइड्स विल बिकम हायर। So that was the explanation कि हाँ there is an indirectly gravitational force exist करता है without कोई medium, ठीक है, because so that was an, इसी को कहते हैं action at a distance, ठीक है। So how I'm connecting it is with जैसे Faraday है ना, Faraday ने भी लाया invisible lines of forces, but जो 19th century में famous this book है, थोड़ा सा इसने डिस्कशन किया है कि ईथर थ्योरी, उस ईथर थ्योरी के हिसाब से था कि इनविजिबल जेली लाइक मोशन उसको कहते थे, ईथर लाइक सबस्टेंसेस। उसी में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते थे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। सो लेटर दैट वाज शोन दैट ईथर, द प्रेजेंस ऑफ ईथर वाज नॉट फाउंड एक्सपेरिमेंटली, दैट वाज नॉट फाउंड। सो वी डिड अवे विद द हाइपोथेसिस ऑफ ईथर, बट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फिर भी रहा ना, ठीक है। ऑल्सो आज की डेट में से दैट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से, और मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर मीडियम एग्जिस्ट्स और नॉट, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट। अब ही सेज फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस दिख रहा है, इट्स इवन पॉसिबल दो कम्बरसम टू फॉर्मुलेट क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एज एन एक्शन एट ए डिस्टेंस थ्योरी डिस्पाइट एंड डिस्पेंस विद द कंसेप्ट ऑफ फील्ड ऑल टुगेदर। अब ये है कि अगर पुरानी किताबों में जाओगे ना, एक किताब लिखी है, एक फिजिसिस्ट है, उसका नाम है हाँ एडमिन विटेकर, उसका एक अगर आप गूगल पे जाओगे फर्स्ट वॉल्यूम है, थियरीज ऑफ ईथर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बट ही कुड, जो ईथर की थ्योरी है ना, उस पर पूरा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कुड फॉर्मुलेटेड, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक क्लासिकल इंटरप्रिटेशन है, ये कह रहा है कि इवन दो इफ यू टेक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स विद ईथर वी कैन स्टिल एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स, बट इफ यू डिस्पेंस अवे विद ईथर, वो आप मॉडर्न डे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं, है ना। किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कि हिस्ट्री कैसे आ गई, दूसरा हो गया कि
जो करंट स्टेट ऑफ नॉलेज को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हिस्ट्री, दिस आर बोथ मेथड्स। पुराने पहले में थोड़ा बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाता है, आपके पास उतना टाइम नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड हैव एप्रिसिएशन फॉर दैट, है कि नहीं। अब इसमें थोड़ा सा ये है, इसमें ये है find the electric, आपने फेमस प्रॉब्लम की, find the electric field at a distance of z above the midpoint between equal charges। कैसे करेंगे, क्या है ना, अगेन ऐसे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू इक्वल चार्ज, क्यों रखेंगे यहाँ, क्यों रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, हम तो नॉर्मली करते थे इलेक्ट्रिक वन चार्ज, टू पावर चार्ज, बंच ऑफ चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए क्यों क्यों आर स्क्वायर है ना। अगर हम अब दो चार्ज लेंगे, कहते हैं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू टू पॉइंट चार्जेस एट ए पॉइंट दिस, तो कैसे निकालेंगे शाबाश, है ना, इसमें सिंपल है, एक E1 आएगा यहाँ से, E2 यहाँ से आएगा। अब E1 E2 के दो कंपोनेंट्स आएंगे, जिस तरह फोर्स करते हैं ना ऐसे, अगर यहाँ से फोर्स है, एक कंपोनेंट इसको इस तरीके से खींचेगा, दूसरा इसको ऊपर खींचेगा, दो इसके भी दो कंपोनेंट्स आएंगे ना ऐसे, और ऐसे और ऐसे, तो ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ खींचेगा, मतलब ये कंपोनेंट जो है ये वाला, और यहाँ से ये वाला खींचा, दे विल कैंसिल ईच अदर ना, एक खींचा इसको, ये वाला इसको, इसका ये कंपोनेंट इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा इसको, सो इट विल हैव E cos थीटा कंपोनेंट एट, but E थीटा है ना, थीटा है ये, दिस इज परपेंडिकुलर और है, सो ये जो ये कंपोनेंट है विल बी cos थीटा कंपोनेंट, ये थीटा, हाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा, सो E sin थीटा आएगा एंड इट विल कैंसिल विद माइनस E sin थीटा, एक इधर साइड से है, एक इधर साइड से, sin थीटा कंपोनेंट विल कैंसिल, तो cos कंपोनेंट्स विल, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है इट विल बी E cos थीटा, E minus sin थीटा, E sin थीटा और E cos थीटा, these two will cancel, ये आएगा 2E cos थीटा, ठीक है, सो 2E cos थीटा आएगा E इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना वैल्यू दो, कितना कैसे दो वैल्यू, सो अगर इसका वैल्यू z है यहाँ पर, सो इसका वैल्यू r है, तो क्या आएगा शाबाश, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर d है, इसका रखोगे d/2, इसका भी रखोगे d/2, तो ये क्या आएगा, cos थीटा आएगा ना ये, तो एक तो अपना आएगा 2a क्यूब r स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से, तो मतलब r स्क्वायर इज बेसिकली d/2 स्क्वायर, ये ना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, हाँ, तो इट विल बी d/2 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यस, हाँ, तो cos थीटा किसके बराबर आएगा, cos थीटा आएगा z by this d स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, हाँ, एक इसमें कैंसिल हो जाएगा, ये ना ये वाला हो जाएगा कैंसिल, इट विल बी 3/2 आएगा, so it will come out to be 2qz 4 pi epsilon naught z square plus d/2 whole square 3/2। Again, now we can do further approximation. जो d है ना, अगर d का वैल्यू कम आएगा,
सो इफ यू कैन जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इसको हम कम करेंगे, इसको हम तो यू कैन नेगलेक्ट दिस। इफ यू नेगलेक्ट इट तो ये आएगा बराबर बेसिकली किसके बराबर 2 to z divided 4 by r 2 के ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर ये 1/2 के साथ ये कैपिटलाइज हो जाएगा, इट विल बी z और इट विल बी z and z cancel that with z square. हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या है? So that इसका मतलब ये है कि when the distance is large, when the distance between 2 point charges is large, the electric field will only depend upon this z. You can neglect this the distance between 2 charges को हम neglect कर सकते हैं when we have at a very far away distance. So this is approximation, you can say it like that. अब in the same way can you do the, अब इसमें यह है कि एक चार्ज प्लस माइनस, अब मैंने माइनस, अब इसमें यह है कि सेम चार्ज है, हम आपके लिए काम है कि आप अपोजिट चार्ज करें, तो उसमें कंपोनेंट्स इधर उधर हो जाएंगे, देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स एन एक्सरसाइज। सो आई जस्ट थोड़ा सा हम करेंगे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, हाउ वी रिप्रेजेंट चार्ज distributions, continuous charge distributions. Continuous charge distribution हो गया, the charge can be either discrete or it can be continuous. Normally even point charge जो है ना वो भी एक idealization है, जैसे हम कहते हैं ना like charge repel, मगर it will become, अगर आप will try to think over it, how will then point charge इसमें कैसे वो रहेगा एक जगह, है ना, you cannot consider point is something very length, no breadth, no height, or very small point. How can you concentrate a slight charge at a one single point? So it's a question. It's also an interesting question. We'll do at the end. अगर आप electrodynamics की last में जाओगे ना इस book में, तो you discuss this question also. तो फिलहाल हम लेंगे point charge को हम ले सकते हैं, ठीक है, as an approximation. अब ये है कि point charge में भी ये है, इस तरह हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो अगर लाइन है, लाइन इज मेड फॉर पॉइंट, सो यू कैन हैव पॉइंट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। सो दीज आर 3 डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें क्या है कि जो चार्ज एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल चार्ज एलिमेंट अगर यहाँ पर है, तो यू हैव ऑलवेज टू फाइंड चार्ज एलिमेंट में जो सरफेस बनाएंगे ना, the electric field will be outside the charge, not be inside the charge. So it can be for line charge, it can be for surface charge, it can be for volume charge. So line charge के लिए you represent, अगर हमारे पास कोई भी charge distribution है, उसका हम फिर line element लेते हैं DL ऐसे at a point P for example. तीसरा surface charge के लेते हैं ऐसे, इसका वॉल्यूम चार्ज के लिए देते हैं ऐसे। ठीक है, दिस इज वॉल्यूम चार्ज, दिस इज सरफेस चार्ज, दिस इज line charge, line, surface, volume. अब इसमें अगर आप रिप्रेजेंट करोगे इन टर्म्स ऑफ लाइन चार्ज को ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा dl, ये चार्ज पर लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ कट जाएगा, विल गेट चार्ज बैक, है ना, दिस अनदर वे ऑफ लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इससे अगर हमारे पास सरफेस चार्ज को हम ऐसे यूज करेंगे,
डी सिग्मा के साथ, हाँ या सिग्मा के साथ, सॉरी या सिग्मा के साथ, तो इट विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट, तो इट विल बी ये डी का एलिमेंट आएगा, ठीक है, उसको हम ऐसे इंक्लूड करते हैं सिग्मा डी ग्रुप में। इस तरह वॉल्यूम एलिमेंट जो होगा अगर चार्ज होगा इधर, अब ये है कि वी वांट टू सबस्टिट्यूट ऑल दीज इन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज सरफेस चार्ज है तो लैम्डा और डी एल बाई आर स्क्वायर, so this is for line charge. So again you have to, मैंने कहा ना इंटीग्रल पे ये रखना है, फिर चार्ज को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, फिर हम इंटीग्रल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इन द सेम वे यू कैन हैव इट फॉर सरफेस चार्ज सिग्मा आर प्राइम और डी ए बाई, और इसी तरह आप इसको रख सकते हैं फॉर वॉल्यूम चार्ज के लिए, वॉल्यूम चार्ज के लिए क्या रखते हैं, वॉल्यूम चार्ज it will be rho d tau, है ना, this is volume, this is d tau क्या है इसमें, this is volume, volume है dx dy dz, एरिया एलिमेंट क्या है यहाँ पर चार्ज, इट विल बी dx dy और dy dx या dy dz, हाँ दो कोऑर्डिनेट्स, इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें एक कोऑर्डिनेट, बट यू हैव टू ऑलवेज सी जो r माइनस r प्राइम है ना, इट शुड बी आउटसाइड द वॉल्यूम, जहाँ से आप कैलकुलेट पॉइंट चार्ज, जहाँ से आप कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट इट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड, एंड यू शुड हैव हाउ कैन इवैल्यूएट सरफेस लाइन एंड, हाँ वन सेकंड सरफेस लाइन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट्स इट। इसमें आप जस्ट आप एग्जाम्पल 2 बुक की है, इसको एक बार देखो आप, ठीक है।